Hello everyone and welcome to the class. I hope you all are doing very great. You all are at your home and you all are safe. So जिन्होंने अभी तक भी अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो वो फटाफट से कर लें ताकि सब मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल कर सकें. I know you all must be thinking it's a recorded lecture, मैम नहीं है, हमें नहीं अटेंड करना चाहिए. But on a very serious note, it will be a very helpful lecture for your term 2 exams. So don't feel that I am not available. I am still there with you. If you still have any query, any doubt, please feel free to drop a message in the chat box. I'll revert then and there only. This is a surety. So before proceeding, I would like to introduce myself once again. Myself Abhilasha Bareja, your business studies educator at Unacademy. Welcome each and everyone to the class. I completed my graduation BCom from Delhi University, post-graduation MBA, Finance as a major and Marketing as a minor from IPM College. I have also done B.Ed from MGU. I am having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take subjects like business organization management, human resource management, and business communication for graduation and post-graduation students. Also, I take up a subject of business and commercial knowledge for CA professional students. Right now, I'm associated with two of the very known academies that are Carlo Thomas Academy and Sign Tutorials. BREJA10 is my referral code. You can use this referral code to purchase any of the subscription, either Plus or Iconic, depends on your choice. With this particular referral code, you can easily get a discount of 10%. So a very Merry Christmas to everyone. I know today is a Christmas. तो सबकी वाइब्स ऐसी होंगी, किसी का भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा. That's why आज हमने 1 बजे लेक्चर रखा है बिकॉज कि आप इजिली पढ़ भी सको और शाम को अपना क्रिसमस एंजॉय भी कर सको. So Merry Christmas to each and everyone. May this beautiful festival brings lots of happiness to each and everyone's life. So in today's class, what we will be covering, let's see. हमारा चैप्टर 6 स्टाफिंग की क्लास है. एज यू ऑल नो कि हमारा स्टाफिंग क्या है, टर्म 2 के सिलेबस का चैप्टर है. टर्म 2 का सिलेबस एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं. चैप्टर नंबर 6, 7 and 8, these 3 chapters are from the part A. Then chapter number 9, 10 and 12, these 3 chapters are from the part B. So this will be our syllabus. Till now हमारे पास यही information है. Our exam will be in a subjective mode. So let's see, अगर कोई further notification नहीं आता तो हमें उसी के basis पर ही preparation करनी है. So उसी behalf पे मैं आपको proper case studies से introduce भी करवाऊंगी. So this is the time where you can easily crack your case studies with lots and lots of case studies. आज हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे along with a single टॉपिक आपको केस स्टडी की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आपके सारे के सारे टॉपिक्स और केस स्टडीज का फेयर भी निकल जाए. सो वी विल बी कवरिंग दिस चैप्टर इन अ शॉर्ट, एक शॉर्ट में करेंगे विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी. कॉमर्स 365 के बारे में आप सब जानते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं then you are eligible to get all the notifications and updates for the classes. आपको सारी की सारी notifications और updates मिलती रहेंगी. आपको पता चलता रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास कब है और उस पर्टिकुलर क्लास में क्या करवाया जाने वाला है, ताकि आप सारे टाइम से पहले ज्वाइन कर लें और किसी भी बच्चे का कोई भी पर्टिकुलर या इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो. So let's start. So are you all ready for the class? जल्दी से, I am still watching all of you. So here we go. पहले मैं आपको खुद अपने नोट्स में समझाऊंगी ताकि उन नोट्स को हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स्ड होंगे. आप इजीली उसको कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं इफ यू वांट टू, ताकि आपको याद होता चला जाए. करेक्ट. उसके बाद हम नोट्स में से पढ़ेंगे और along with that हम केस स्टडीज भी करते जाएंगे टॉपिक वाइज. So here we go. हमारा चैप्टर नंबर 6 है स्टाफिंग. तो बच्चों स्टाफिंग क्या है?
स्टाफिंग का मतलब होता है, अगर हम हिंदी भाषा में कहें, स्टाफ करना। ठीक है, स्टाफ करना यानी कि हमें हायर करने होते हैं क्या, एम्प्लॉइज को हायर करना। अच्छा, अब बच्चों ये एम्प्लॉइज क्या कहलाते हैं, हम एम्प्लॉइज को कहेंगे पर्सोनल। पर्सोनल कौन हो गए, हमारे एम्प्लॉय। तो स्टाफिंग क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं अपॉइंटिंग राइट पर्सन at the right job at the right time। अच्छा, राइट पर्सन मतलब जिसके पास पूरी की पूरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशन है। क्या, जिसके पास पूरी की पूरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, प्रॉपर स्किल्स है। राइट जॉब वो जिस पर्टिकुलर फील्ड में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। करेक्ट। और राइट टाइम, जब एक्चुअली में हमें ऑर्गेनाइजेशन में नीड है। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में अभी नीड नहीं है तो हम अननेसेसरली किसी को क्यों हायर करेंगे। सो राइट पर्सन कहता है जब हमारे पास ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास कंप्लीट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, जो जिस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, हम उसको वही जॉब देंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई एचआर में स्पेशलाइज्ड है तो हम उसको एचआर का ही देंगे, कोई फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड है तो हम उसको फाइनेंस का ही देंगे। राइट टाइम यानी कि जब हमें ऑर्गेनाइजेशन में किसी की नीड होगी। ये कहता है हम ऑर्गेनाइजेशन में रह के ना ही कभी अंडर स्टाफिंग कर सकते हैं और ना ही कभी हम ओवर स्टाफिंग कर सकते हैं। अब आप सारे सोच रहे हैं कि मैम ये अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग आखिर होते क्या है, तो मैं आपको बताऊं। अगर सपोज हमें 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है, अंडर स्टाफिंग होता है जब हम 150 को हायर कर लेते हैं। अब आप खुद बताओ, 150 लोग 200 लोगों का काम क्यों करेंगे, जी वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ओवर स्टाफिंग जब हम 250 लोगों को हायर कर लेते हैं, तो 250 लोग की हमें जरूरत क्या है, जब हमें नीड तो सिर्फ 200 की है, हम क्यों 50 बंदों की एक्स्ट्रा लायबिलिटीज लेंगे, तो हम नहीं करेंगे। ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हमें जितनों की नीड होती है हम उतनों को ही हायर करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। नेक्स्ट ये कहता है स्टाफिंग इज नीडेड। स्टाफिंग इज नीडेड, हमें स्टाफिंग कहां कहां पे जरूरी होती है, तो हमें स्टाफिंग की जरूरत होती है न्यू ऑर्गेनाइजेशन में भी, और हमें जरूरत होती है इसकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी। अच्छा, अब ये न्यू और एग्जिस्टिंग का क्या फंडा है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अगर हम हिंदी में बोले तो न्यू का मतलब क्या होता है, नई, और एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी चल रही है। अब नई है तो उसमें लोग कितने होंगे, 0। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें नीड है यहाँ पे फुल स्टाफिंग की। और जो चल रही है काम करते हुए, किसी की डेथ हो सकती है, कोई रिटायर हो सकता है, कोई अपनी जॉब को खुद छोड़ सकता है, किसी किसी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो इन सारे रीजन को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होती है फिर से अपनी स्टाफिंग। तो बच्चों, स्टाफिंग एक ऐसी चीज है जो हमें नई ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरत है, जो हमें एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी। क्लियर। यहीं से आती है हमारी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला होता है हमारा फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सोनल। अभी मैंने आपको बताया था ना, पर्सोनल कौन होता है, एम्प्लॉय। कॉम्पिटेंट पर्सनल का मतलब क्या होता है, जिस एम्प्लॉय के पास कंप्लीट नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और स्किल्स है, उसी ही कंसर्न पर्सन को हम हायर करेंगे। हम अननेसेसरली किसी को भी उठा के हायर नहीं कर सकते। जिसके पास कंप्लीट एजुकेशन, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, हम उसी को ही हायर करेंगे, किसी को भी ऐसे ही हायर नहीं कर सकते।
अब आप सोच रहे होंगे क्यों मैम, हर चीज किसी को ऑप्शन मिलना चाहिए। तो बेटा ऑप्शन उसको तभी मिलना चाहिए जहां पे वो स्पेशलाइज्ड है, और वही स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करके हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, लेट्स सी। तो सेकंड पॉइंट इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर हम स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करते हैं तो दैट मीन्स कि हमारी गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, हमारी रिडक्शंस, यानी कि गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। अब हमारी गलती होने के चांसेस रिड्यूस, यानी कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉपुलर, यानी कि लोग हमारे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, पसंद। फिर अगर लोग बच्चों हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं तो यानी कि वो लोग हमारा प्रोडक्ट क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी की क्या आएगी, ग्रोथ। थर्ड पॉइंट, बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस कैसे, अगर हम स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर करते हैं, स्पेशलाइज्ड को ही हायर करते हैं, तो हमारा वर्क क्या होगा, परफेक्ट। तो परफेक्ट होगी तो हमारी परफॉर्मेंस क्या आएगी, परफेक्ट। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप सबको पता है हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, केयर। तो हम अपने उन रिसोर्सेज को भी बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, और हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ऐसे यूज करना है कि हम उनसे डबल डबल या डुप्लीकेट करवा के काम को, उनकी मेहनत, उनके एफर्ट्स को वेस्ट ना कर पाए। तो हमें हर चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से यूज करना। हमारे इस चैप्टर में एक टर्म यूज करी जाती है एंड दैट टर्म इज नोन एज ले ऑफ। वो टर्म क्या कहलाती है, ले ऑफ। ठीक है, ले ऑफ क्या होता है, ले ऑफ का मतलब होता है टेम्पररी, ये एक नंबर में आ जाता है कभी, टेम्पररी जस्टिस। टेम्पररी separation of an employee, of an employee from the organization because of recession. कई बार क्या होता है हमारा, मैं बताती हूँ, जैसे कि आपने अभी पीछे देखा था, कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में ऐसा नहीं होता, जब कंपनी एम्प्लॉइज को हायर कर लेती है तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं तभी वो कंपनी उनको हायर करती है, करेक्ट। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में एक ऐसा दौर आ जाता है, या आपको एक ऐसा फेज आ जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन कहो या आप कहो कि पूरी मार्केट में, कि मार्केट में कोई काम नहीं होता, वो दौर कहलाता है हमारा रिसेशन, जब मार्केट में एक्चुअली में ही कोई काम वाम नहीं होता। उस टाइम पे कंपनी के पास भी एक्स्ट्रा फंड्स नहीं होते, तो वो क्या करती है, फॉर द टाइम बिंग अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि फॉर द टाइम बिंग मैं आपको कंपनी से टर्मिनेट करती हूँ, नॉट बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, बिकॉज क्योंकि मेरे खुद के पास ही काम नहीं है। तो वो कहती है थोड़े टाइम के लिए आप प्लीज अपना घर पे रहें, इफ यू फाइंड अ बेटर जॉब देन इट्स ओके, अदरवाइज थोड़े टाइम बाद मैं खुद ही आपको रिकॉल करके वापस बुला लूंगी। इट्स नॉट बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट बिकॉज की मार्केट में रिसेशन है, कंपनीज के पास काम नहीं है, तो वो सैलरीज कहां से दे पाए। दिस टर्म इज नोन एज ले ऑफ, जो हमारी कई बार 1 मार्क में आ जाती है। एक और मैं आपको 1 मार्क के क्वेश्चन बताती हूँ। सो द क्वेश्चन इज, what is staffing? What is staffing concerned with? Staffing किससे concerned होती है? And the answer is, staffing is concerned with, staffing is concerned with maintaining
satisfied and satisfactory workforce. तो स्टाफिंग किससे कंसर्न होती है? इट इज कंसर्न विद मेंटेनिंग सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स, यानी कि हमें ऐसी टीम चाहिए जो बेस्ट हो, बेस्ट टू बेस्टेस्ट हो, जिसके पास कंप्लीट नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन हो, ताकि वो हमारा काम क्या कर सके? स्पेशलाइज्ड कर सके। हमें हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही लोगों को हायर करना। करेक्ट? यहां से आते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ स्टाफ। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये क्या कहती है? एस्टिमेटिंग का मतलब होता है अंदाजा लगाना, हमें कितने लोगों की जरूरत है। तो हम इसको दो चीज से अंदाजा लगाते हैं। वो दो चीजें क्या होती हैं? सबसे पहला होता है हमारा वर्क लोड एनालिसिस, और दूसरा होता है हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड, लोड क्या कहता है कि लोड, हमारे पास काम का प्रेशर कितना है। सपोज हम काम कर रहे हैं, काम करते करते क्या हो जाता है, हमारे पास एकदम से बहुत प्रेशर आ जाता है, तो उस हिसाब से हमारे पास जितने एम्प्लॉयज होते हैं वो कम पड़ते हैं। हम बाहर से फॉर द टाइमिंग काम करवाने के लिए एम्प्लॉयज को बुलाते हैं, ताकि हम पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर सकें। ये होता है हमारा कौन से बेसिस पर? टेम्पररी बेसिस पर। कौन से बेसिस पर? टेम्पररी बेसिस। दूसरा होता है हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? टीम। एटलीस्ट हमें एक टीम की जरूरत होती है, एटलीस्ट हमें एक टीम बनाने की जरूरत होती है कि वो टीम एक्चुअली में होनी ही होनी चाहिए। सपोज सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है और एक दिन लोग छोड़ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, हमारे 180 हो जाते हैं, तो कंपनी अर्जेंट बेसिस पर 20 लोगों को क्या करेगी? हायर करेगी। क्यों? क्योंकि कम से कम 200 की तो रिक्वायरमेंट है ही सही। यानी कि जो वर्क फोर्स एनालिसिस होता है, ये हमारा कौन से बेसिस पर होता है? ये होता है हमारा परमानेंट बेसिस पर। करेक्ट? सेकेंड स्टेप आता है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या कहता है? रिक्रूटमेंट कहता है वेयर pool of applicants come and apply for the job. Where pool of applicants come and apply for the job, जहां पे लोग आके सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। तो बच्चों, जब भी हम किसी काम के लिए शुरुआत करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो एज जब हम कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई करने लगेंगे तो हम बहुत खुश होंगे। सो एज की रिक्रूटमेंट क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। क्या कहलाता है? पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। थर्ड थर्ड आता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि ओनली द डिजर्विंग and desired candidate is selected, else all are rejected। यानी कि ये क्या कहता है? जो कि डिजर्विंग होता है, जिसके पास कंप्लीट नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन होता है, वो तो सिलेक्ट हो जाता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट। यानी कि यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, यानी कि रिजेक्शन हमेशा क्या होती है? गंदी चीज। गंदी बोले तो ये क्या कहलाता है? हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। ये क्या कहलाता है? हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। करेक्ट? फोर्थ स्टेप होता है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन।
प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जिस पर्सन को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको हम उसकी डिजायर्ड पोजीशन पर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। करेक्ट, जहां पे जिस फील्ड के लिए उसको सिलेक्ट किया है वहीं पे उसको क्या कर देंगे, प्लेस कर। अब ध्यान से सुनेंगे। ओरिएंटेशन ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, दैट इज कंडक्टेड टू familiarize the employee to the organization। ये एक ऐसा प्रोग्राम हो जाता है जो कंडक्ट किया जाता है ताकि हम एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवा सके। हम ये बता सकें कि ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसी है, और कौन कौन उसमें काम करता है। तो इस सब को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम या इंडक्शन प्रोग्राम भी कहलाया जाता है। करेक्ट। फिफ्थ स्टेप आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है? ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू enhance knowledge and skills of a candidate। एक कैंडिडेट की नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसलिए देते हैं ताकि हम किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल्स को बढ़ा सकें। अब एक बात बताती हूं मैं आपको जो आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकती है। ट्रेनिंग इज ऑलवेज जॉब ओरिएंटेड मतलब हम जिस पर्टिकुलर फील्ड में होते हैं हमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर फील्ड की ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम एक पर्टिकुलर अपनी जॉब को क्या कर सके, परफेक्ट कर सके। वेयर एज डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट जो होती है ये होती है हमारी कैरियर ओरिएंटेड। ये क्या होती है हमारी कैरियर ओरिएंटेड। कैरियर ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, कैरियर ओरिएंटेड होती है जो हमारे कैरियर में बढ़ोतरी करती है, यानी कि हमारे कैरियर को और अच्छा इंप्रूव करने में करती है। दिस इज द 1 मार्कर क्वेश्चन जो आ सकता है, डैश इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस या डैश इज अ कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस। further 3 steps are taken for those organizations who don't have separate HR डिपार्टमेंट। ठीक है, वो क्या होते हैं? तो 6th स्टेप जो हो जाता है हमारा आता है यहां पे, and that step is known as what? Performance appraisal। परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहां पे हमारे एक एम्प्लॉय की चार्ट शीट बनाई जाती है। चार्ट शीट इज प्रिपेयर्ड या आप कह सकते हो चार्ट शीट इज मेंटेन्ड, और इसको चेक किया जाता है जो कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे होते हैं उसके साथ हमेशा इसको कंपेयर किया जाता है। हर कंपनी अपने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है और उन स्टैंडर्ड्स को कंपनी बनाई हुई चार्ट शीट के साथ हमेशा कंपेयर करती रहती है, ये देखने के लिए क्या हम ठीक है या नहीं। इससे हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जो कि कहलाता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। क्या बनता है? प्रमोशन एंड कैरियर प्लान।
यहाँ पे क्या होता है, प्रमोशन मतलब इफ द कंपनी सेटिस्फाइड, तो हम एम्प्लॉय को क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। वो प्रमोशन उसकी हेल्प क्या करती है, उसकी कैरियर प्लानिंग में। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी ड्यूटीज बढ़ती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, उसका स्टेटस बढ़ता है, उसकी सैलरीज भी बढ़ती हैं। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों, कॉम्पेंसेशन, जो क्या कहलाते हैं, हमारे रिवॉर्ड। जो हमारे कितने तरीके के होते हैं, दो। कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट, डायरेक्ट कौन से होते हैं, जो हमारे होते हैं डायरेक्ट पेमेंट की फॉर्म में, यानी कि जो होते हैं हमारे सैलरीज, कमीशंस की फॉर्म में। और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं हमारे जैसे कि रेंटल इनकम, रेंट पे दे दिया, और टेलीफोन फैसिलिटी ये दे दिया, या कार फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, इस तरीके की कोई चीज दे दी। एक बात बता दूं छोटी सी, हमारा स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस कभी भी नहीं आएगा इस तरीके से। आपको क्या करना होगा मैं बताती हूँ। आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी, सपोज अ स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट हैज बीन परफॉर्म, आपको बताना होगा उसके फर्दर 3 स्टेप्स क्या है, या उसके पहले के 2 स्टेप, एक स्टेप क्या, इस तरीके का आएगा। तो इन शॉर्ट हमें पढ़ना तो पूरा है, हमें कॉन्सेप्ट हर चीज का समझना जरूरी है। क्वेश्चन जैसे भी आए नो मैटर, हमें बस सॉल्व करना। So now here we are starting with the most important thing, that is 3 aspects या components, components of staffing, 3 aspects या components of staffing। करेक्ट? अब ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, यहां से हमारा चैप्टर हो रहा है असल शेप। पहला होता है हमारा रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है हमारा क्या, सिलेक्शन, और तीसरा होता है हमारा क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर? अब हम इसको करेंगे पूरा थॉरली। सबसे पहला होता है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा भी था पीछे। रिक्रूटमेंट कहलाता है वेयर पूल ऑफ कैंडिडेट्स कम एंड अप्लाई फॉर द जॉब, जहां पर एप्लीकेंट्स आके सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव सोच के करते हैं, दैट इज नो व्हाई दिस इज नोन एज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। करेक्ट? रिक्रूटमेंट के हमारे सोर्सेज होते हैं, वो होते हैं 2। सबसे पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल, इंटरनल वो होता है जो हम अंदर ही अंदर करते हैं। एक्सटर्नल वो होता है जब हम बाहर के लोगों की हेल्प लेके अपने काम को करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना इंटरनल। इंटरनल को फर्दर हम 2 में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रमोशन और फिर आता है हमारा ट्रांसफर। अब सुनते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इसका डिफरेंशिएट। प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है, व्हेन एन एम्प्लॉय is shifted 1 step ahead। वो जिस भी फील्ड में काम कर रहा होता है उस फील्ड में हम उसको 1 स्टेप अहेड शिफ्ट करते हैं। तो 1 स्टेप अहेड शिफ्ट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द वर्टिकल शिफ्ट। क्या कहलाता है ये, वर्टिकल शिफ्ट। फिर जब हम उसको वर्टिकल शिफ्ट कर देते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हम एक असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोट करके बना देते हैं, क्या बना देते हैं, मैनेजर। अब आप खुद बताओ, अगर एक असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट करके मैनेजर बनेगा तो उसकी ड्यूटीज बढ़ेंगी,
उसकी सैलरीज बढ़ेंगी, उसका स्टेटस बढ़ेगा और साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। करेक्ट। दूसरा होता है हमारा ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है? व्हेन एन एम्प्लॉय इज शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू another or from one department to another। जब हम एक एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, सपोज हमारे एचआर डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा लोग हैं, वहीं पे हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत कम है। हम सोचते हैं हम बाहर से क्यों लाएं, क्योंकि वैसे भी ये इंटरनल है, हमें अंदर ही अंदर अपना सारा काम करना है। सो आज हम क्या करेंगे, हम अपने कुछ एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को शिफ्ट कर देंगे अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो आज हम वहीं पर ही शिफ्टिंग करते हैं। देयरफॉर ये कौन सी शिफ्ट कहलाती है? ये कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। एग्जाम्पल, एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को हम शिफ्ट कर रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। जब हम एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसकी ड्यूटीज नहीं बढ़ेंगी, उसका स्टेटस नहीं बढ़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बढ़ेगी, लेकिन कभी कभी उसकी सैलरीज बढ़ सकती, बहुत ही रेयर केसेस में उसकी सैलरीज बढ़ सकती है, नहीं तो नहीं। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, कई बार हमारा क्वेश्चन आ जाता है डैश इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, तो आंसर आता है हमारा क्या? ट्रांसफर। और डैश इज नोन एज द वर्टिकल शिफ्ट, तो वो आता है हमारा प्रमोशन। करेक्ट। इसके बाद आते हैं हमारे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जब हम बाहर के लोगों की हेल्प लें। तो इसको करने के हमारे 9 मेथड्स होते हैं। कितने? 9 मेथड। सबसे पहला आता है हमारा डायरेक्ट रिक्रूट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है हमारा? जब हम एक नोटिस बोर्ड पर, अब बाहर ही नोटिस बोर्ड पर अपनी नीड लगा देते हैं जॉब की। सपोज हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक अपनी शॉप है कपड़ों की, और मुझे 2 सेल्समैन की जरूरत है, मैं बाहर लेती हूँ। ये सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं होता, जो देखेगा आ जाएगा। इसमें कोई हमें ज्यादा क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है, क्यों? क्योंकि मुझे सेल्समैन चाहिए तो वो क्या, उसको ज्यादा कपड़े दिखाने आने चाहिए, बोलना अच्छा आना चाहिए और कपड़े तय करने आने चाहिए। सेकेंड होता है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। जहां पे हम कॉलेजेस से हायर करते। आपने सुना होगा कॉलेजेस के फाइनल ईयर में कंपनीज आती हैं और हर कोई इसमें बैठता है। जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट होता है उसको कॉलेजेस से सिलेक्ट कर लिया जाता है और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्टडीज उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट होता है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्या कहता है? ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉय अपने फ्रेंड, रिलेटिव, किसी को भी क्या कर देता है? रिकमेंड कर देता है। जैसे कि मैं काम कर रही हूं, मैंने काम करते करते अपने फ्रेंड को बोला कि ठीक है यहाँ पे वैकेंसी निकली है, अगर तुम ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा? तुम्हारी टाइप की जॉब है, तुम्हें इस चीज का कंप्लीट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तुम अगर ज्वाइन करोगे तुम्हें बेनिफिट होएगा। इफ यू वांट यू कैन। इससे हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक
अवॉइड हो सकता है। अब आप सोच रहे हैं ये क्या होता है, तो ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। जो हम न्यूज़पेपर्स, जनरल्स कहीं पर भी दे देते हैं, टीवी, रेडियोस, कहीं पर भी हम न्यूज दे देते हैं। फिफ्थ आता है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो जब हमें काम करते हुए लेबर की जरूरत पड़ती है या कमी हो रही होती है, तो हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, हमारे लेबर यूनियन बाहर से लोगों को बुला लेते हैं और बुला के वो उनको हायर करवा देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग जो हम इंटरनेट यानी कि naukri.com, jobseeker.com, यहां पर अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बहुत ध्यान से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है ये हमारी गवर्नमेंट रन करती है, जहां पे मिडिल लेवल और लोअर लेवल यानी कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को हायर करने में हेल्प करती है। इसी की ही दूसरी बहन भी होती है, वो कौन होती है? एनी गेसेस? तो वो होती है प्राइवेट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्राइवेट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, जहां पे हम टॉप लेवल और मिडल लेवल यानी कि फुल्ली स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों को हायर करते हैं। करेक्ट। और लास्ट होता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स बोले तो जहां पे हम अपना अनसॉलिसिटेड डेटाबेस, जो हमारा केस स्टडीज में मिलेगा, अनसॉलिसिटेड डेटाबेस जो हमारे पास पड़ा होता है, उसमें से हम रैंडमली कॉल करके किसी को बुलाते हैं एट द टाइम जब हमें ऑर्गेनाइजेशन में नीड। वन मोर थिंग, इसमें से एक तो कैंपस रिक्रूटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू from your exams. Second one is private agencies and management consultants, and third one is casual callers. ये तीनों तो खा जाना पी जाना, इन तीनों में से क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। So this was completely about the recruitment. मैं आपको फिर से एक पिक्चर दे दूं। रिक्रूटमेंट दो में डिवाइड होते हैं, दो सोर्सेस, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। इंटरनल आगे फर्दर हमारा दो होता है, वो दो क्या होते हैं? प्रमोशन एंड ट्रांसफर। वेयर एज एक्सटर्नल जो होता है वो हमारा आगे 9 में किया जाता है। वो 9 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सेकंड कैजुअल कॉलर्स, थर्ड कैंपस रिक्रूटमेंट, फोर्थ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिफ्थ वेब पब्लिशिंग, सिक्स्थ एडवर्टीजमेंट, सेवेंथ employment exchange, eight private agencies and management consultants,
and ninth one is labor contract. Correct? Any doubt till here? सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है हमारा सिलेक्शन. सिलेक्शन क्या कहता है? सिलेक्शन कहता है ओनली द डिजर्विंग एंड डिजायर्ड कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, else all are rejected. तो जो डिजर्विंग का डिजायर्ड होता है सिर्फ वही सिलेक्ट होएगा, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग. तभी वो क्या कहलाता है? ये नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग कहलाता है. सो सिलेक्शन का हमारा क्या होता है? हमारा होता है इसका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. तो वी हैव टू सी द प्रोसेस. हमारे 8 पॉइंट्स का प्रोसेस होता है. अब हम इसको पूरा डिटेल में देखें. सबसे पहला होता है हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, हमें एक फॉर्म दिया जाता है और हमें उस फॉर्म को फिल करना. उस बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. एक बेसिक फॉर्म होता है और हमें उस बेसिक फॉर्म को ही फिल करना होता है. उसमें हमारी नाम, एजुकेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस, हमारी ईमेल आईडी, हमारी एक्सपीरियंस, हमारी सैलरी एक्सपेक्टेड, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा बैकग्राउंड, ये सब चीजें होती हैं. इस शॉर्टलिस्टेड बेसिस पर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होएगा वो फर्दर जाता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए. कहां जाता है? प्रीलिमिनरी इंटरव्यू. यहां पे उससे वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो फॉर्म में नहीं होते, वो सारे क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं. सेकेंड स्टेप आता है हमारा टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट. यहां पे हर एम्प्लॉय को 5 तरीके के टेस्ट से गुजरना पड़ता है. वो 5 तरीके के टेस्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट, फिर होता है इंटेलिजेंस, फिर होता है एप्टीट्यूड, फिर होता है हमारा ट्रेड, और लास्ट होता है हमारा पर्सनालिटी. उसके बाद हर एम्प्लॉय को 5 टेस्ट से गुजरना पड़ता है. इंटरेस्ट टेस्ट, सबसे पहले इसमें हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट देखे जाते हैं. इंटेलिजेंस में हमारा आईक्यू लेवल चेक किया जाता है. एप्टीट्यूड में हमारी एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स ये देखी जाती है. ट्रेड टेस्ट में हमारा डेमो होता है, और पर्सनालिटी टेस्ट में हमारे इमोशंस, बिलीव्स और वैल्यूज ये देखे जाते. एनी डाउट टिल हियर? थर्ड स्टेप आता है हमारा एम्प्लॉय इंटरव्यू. जहां पे हमारा पैनल के साथ, पूरे के पूरे मैनेजमेंट पैनल के साथ, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है. इसके बाद आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स. जो मैंने आपको कहा था मैं आगे बताऊंगी. इसमें जो एम्प्लॉय आया होता है उसका पूरा का पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि एम्प्लॉय ठीक है नहीं है. ठीक मतलब कि whether the employee is clean sheet or not, वाकई में ही वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा. एंड इफ इज अ फ्रेशर, क्या वो सही है? डिग्री इज जेन्युइन और नॉट, द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज करेक्ट और नॉट. फाइनली इस बेसिस पर एक एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि सिलेक्शन डिसीजन.
सिलेक्शन, जहां पे फाइनली एक एम्प्लॉय को क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर दिया। उसी सिलेक्शन के बेसिस पर उसी एम्प्लॉय का क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, जहां पे चेक किया जाता है वेदर द एम्प्लॉय इज फिजिकली और मेंटली फिट और नॉट, जहां पे चेक करते हैं कि एम्प्लॉय फिजिकली एंड मेंटली फिट और नॉट। फिर नेक्स्ट में उसको क्या ऑफर करी जाती है, जॉब ऑफर करी जाती है, जहां पे उसकी ड्यूटीज, उसकी सैलरीज, उसके बोनस, सब कुछ क्या किया जाता है, डिस्कस। यहां पे उसको क्या दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर, क्या मिलता है उसको यहाँ पे, अपॉइंटमेंट लेटर। और फाइनली हमारा आता है लास्ट स्टेज, जो कि कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे क्या होता है, फाइनली दोनों पार्टीज आपस में डील में आ जाए, जहां पे उनकी सैलरीज, एक्सपेक्टेड सैलरी, उनकी हॉलीडेज, उनकी लीव, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। दिस इज द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के क्वेश्चंस आने के हमारे बोर्ड में 110% चांसेस होते हैं। यू कैन नॉट अवॉइड दिस प्रोसेस। आपको ये प्रोसेस, ठीक है, पूरा नहीं आएगा, लेकिन आपके इस प्रोसेस के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लेट मी टेल यू। जैसे कि ये केस स्टडी दी होगी एंड इट विल बी गिवन की जॉब ऑफर हैज बीन गिवन, अपॉइंटमेंट लेटर हैज बीन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, व्हाट आर द 3 प्रीवियस स्टेप्स ऑफ इट। तो आपको इसके पहले के 3 स्टेप्स करने हैं। इन एनी वे आपको ये पूरा प्रोसेस तो याद करना ही पड़ेगा स्टेप वाइज। इसके क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। थर्ड आता है हमारा क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं क्यों, टू एनहांस नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ अ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट की नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमारी 2 तरीके से करी जाती है, एक होती है ऑन द जॉब और एक होती है हमारी ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब वो होती है जो हमारी वर्क प्लेस पे प्रोवाइड करी जाती है, ऑफ द जॉब वो होती है जो हमारी अवे फ्रॉम वर्क प्लेस प्रोवाइड करी जाती है। लेट्स सी अब ऑन द जॉब में क्या है। ऑन द जॉब में सबसे पहला आता है हमारा इंटर्नशिप। जब हम कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इन बिटवीन दैट पढ़ाई हमें उस पर्टिकुलर कोर्स की लेनी पड़ती है क्या, प्रैक्टिकल नॉलेज। उस प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने की ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। सेकंड होती है हमारी अप्रेंटिसशिप। जहां पे हमें सुपीरियर या सुपरवाइजर की गाइडेंस में रखा जाता है, सुपरवाइजर की गाइडेंस में रखा जाता है। यहां पे हमारे आते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस, हमारे प्लम्बर्स, कारपेंटर्स। ये क्या होता है, सपोज एक पर्सन को इलेक्ट्रीशियन बनना है, अगर वो डायरेक्टली काम करने चला जाएगा तो वो अपना भी रिस्क है और किसी और का जिसके घर काम करेगा उसका। तो एज टू अवॉइड दिस, अगर उसको फॉर द टाइमिंग किसी एक्सपर्टाइज की नॉलेज के अंडर रखा जाए, एक सुपरवाइजर की जो उसको कंप्लीट नॉलेज दे सके, उसको कंप्लीटली सिखा सके, तो हमारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाए। थर्ड होती है हमारी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। जो कि क्यों दी जाती है, टू फेमिलराइज
एन एम्प्लॉय टू दी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक एम्प्लॉय को उसकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करते हैं, फेमिलियराइज, हम बताते हैं उस एम्प्लॉय को व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट, व्हाट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहते हैं। और लास्ट होती है हमारी ऑन द जॉब में जॉब रोटेशन, जहां पे एक एम्प्लॉय की जॉब को रोटेट किया जाता है सारे वर्क स्टेशन पे, ताकि वो परफेक्ट हो सके हर ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड में। नेक्स्ट आती है हमारी ऑफ द जॉब, जो अवे फ्रॉम वर्क प्लेस दी जाती है। इसमें हमारी सिर्फ एक ही होती है, जो क्या कहलाती है, जस्टिस। जिसमें हमारी सिर्फ एक ही होती है और वो कहलाती है हमारी क्या, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, जो हमें हाईटेक मशीनरी को समझने में चाहिए होती है, जो हमें चार्ट्स, मॉडल्स या डमीज के थ्रू समझाया जाता है। इसका एक ही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी जो आपको हमेशा याद रहेगा। एग्जाम्पल होता है जैसे बचपन में आपने एसएसटी पढ़ी होगी, ग्लोब्स को या कॉकपिट। कई बार क्या होता है, कॉकपिट एक ऐसी जगह होती है जहां पे पायलट बैठ के प्लेन उड़ाता है। अगर हम डायरेक्टली पायलट को बोल दें, मतलब एक पर्सन को बोलते हैं जाओ बेटा प्लेन उड़ाओ, क्या वो उड़ा पाएगा? नो। व्हाई? बिकॉज उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि उस पर्टिकुलर सीट पे बैठ के उसको कौन से बटन्स के साथ ऑपरेट करना है। तो उसको इजी करने के लिए एक डमी कॉकपिट बनाई जाती है, सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल कॉकपिट, ताकि वो वहां पे अच्छे से सीख सके, समझ सके, कर सके। और फाइनली जब सब कुछ हो जाए, जब वो ट्रेंड हो जाए, तो डायरेक्टली उसको प्लेन दो और फ्लाई इट आउट। ये कहलाती है हमारी कौन सी ट्रेनिंग? वेस्टिबुल ट्रेनिंग। आप ये लगा लो, वेस्टिबुल ट्रेनिंग का एक क्वेश्चन 100% हमारा बोर्ड में आता ही आता है। यू कैन नॉट अवॉइड दिस क्वेश्चन, तो हमें ये सारे पढ़ने जरूर। With this, we have come to an end of the chapter. Now let's start with the case study. So, स्टाफिंग क्या कहता है? मेंटेनिंग अ सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्टरी वर्क। स्टाफिंग की हमें कहाँ नीड है? नई ऑर्गेनाइजेशन में भी और जो पुरानी है उसमें भी। नई में क्यों? क्योंकि 0 लोग हैं। और एग्जिस्टिंग में क्यों? किसी की डेथ हो सकती है, कोई रिटायर, किसी को टर्मिनेट, कोई अपनी मर्जी से भी छोड़ सकता है। इंपॉर्टेंस, फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि हमें बेस्ट और स्पेशलाइज्ड पर्सन के साथ जॉब को फिल करना है। परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हमें परफेक्ट एम्प्लॉइज चाहिए जो हर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, इफ द कंपनी विल बी अर्निंग गुड, अगर हम अच्छे लोगों को हायर करेंगे, हमारे रिजेक्शंस हो जाएंगे रिड्यूस, कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे, तो वो आगे क्या करेगी? ग्रो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें उनसे ओवर स्टाफिंग नहीं करवानी है कि हम उनके टैलेंट को कम कर सके। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, उनसे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी अगर हम उनसे सजेशंस लेंगे। वी कैन प्रोवाइड देम रिवॉर्ड जो उनका मोरल को बूस्ट अप करने में हेल्प करे। सो हियर इज द केस स्टडी। जब भी आपके पास केस स्टडी है, डोंट पैनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द पॉइंट्स व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, टेक अ पॉइंट इन योर माइंड, उसके बाद आंसर करो। 100% आंसर हमारा निकलेगा। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन कौन से होते हैं? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। एस्पेक्ट क्लियर, साइड रखो। डिस्क्राइब ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन। अब जो हमने पॉइंट पढ़ा है, हमें उसकी क्या बतानी है? इंपॉर्टेंस बतानी है। अब हमारे दिमाग में वही वर्ड्स चलेंगे। Nakul belongs to a small village in Varanasi. Being the only literate person in his immediate family, he decided to settle in a city. So he opens a sweet shop in Chandni Chowk, Delhi, as he possesses extraordinary culinary skills. Very soon he starts getting requests from his cousins in the village to engage them in some kind of job in his business. Considering it to be his moral obligation, he engages 5 of his cousins in the business.
without paying any specific attention of their individual capability. This leads to wastage of material, time, efforts, and energy, resulting in lower productivity and poor quality of products. As a result, the profitability of his business starts falling. So he realized that the success of the organization, it's essential that right kind of person must be available in right number at the right time. तो हमें पता लग गया किसकी बात कर रहे हैं. क्या हो गया हमारा आंसर? स्टाफिंग. अब हमें स्टाफिंग की ही इंपॉर्टेंस बतानी है. सो सबसे पहली क्या थी? फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट personnel. Second, survival and growth. Third, better performance. Clear? So here is the staffing process. सबसे पहले estimating the manpower requirement, जहां पे हम अंदाजा लगाते हैं workload of workforce analysis. वर्कलोड जो होता है ये हमारा कौन से बेसिस पर होता है? इट्स ऑन द टेम्पररी बेसिस, वेयर एज वर्कफोर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है? इट्स ऑन अ परमानेंट बेसिस. प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इफ एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, जल्दी से. Next, so identify the concept which will help the HR human resource manager in deciding the actual number of persons required in each department. Alpha Enterprises is a company manufacturing water heaters. The company has a functional structure with 4 main functions: production, marketing, finance, and HR. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. यानी कि डिमांड फिलहाल बढ़ गई है तो प्रेशर ज्यादा है, यानी कि क्या हो गया? वर्कलोड एनालिसिस. नेक्स्ट, identify the concept which will help the HR manager to find out the number and type of personnel available so that he could decide and recruit the required number of persons of each department. Bhagwati Enterprises is a company engaged in the marketing of air conditions of a famous brand. The company has a functional structure with 4 main functions: purchase, sales, finance, and staffing. As the demand for the product grew, the company decided to recruit more employees. यानी कि डिमांड बढ़ गई, उसको हर नंबर ऑफ पर्सन्स की जरूरत है जो हमारे कम हो गए हैं तो उनको हायर कर रही है, यानी कि उसकी टीम कम हो रही है तो क्या हो जाएगा? वर्कफोर्स एनालिसिस. करेक्ट. सेकेंड होता है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या होता है? पॉजिटिव एस्पेक्ट, जहां पे लोग आके सिर्फ और सिर्फ अप्लाई. थर्ड इज सिलेक्शन. सिलेक्शन इज नोन एज द नेगेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि जो डिजायर्ड होता है या जो डिजर्विंग होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट हो जाते हैं. प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जहां पे हम कंसर्न पर्सन को उसकी जॉब पर क्या कर देते हैं? प्लेस. ओरिएंटेशन क्या होता है? जब एक एम्प्लॉय को फेमिलराइज कराने के लिए प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है. नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, विच इज प्रोवाइडेड ताकि हम एक एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल्स को क्या कर सके? एनहांस कर सके. इसके अलावा 3 मोर स्टेप्स आर टेकन. 3 मोर स्टेप्स आर टेकन जहां पे सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता. परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहां पे हम क्या करते हैं? एक चार्ट शीट बनाते हैं एम्प्लॉय की और उसको कंपेयर करते हैं किससे? स्टैंडर्ड्स के साथ. जो किसने सेट कर रहे होते हैं? जो कंपनी सेट करती. प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, जहां पे एम्प्लॉय की प्रमोशन होती है, उसका कैरियर प्लान किया जाता है. कैसे? अगर वो उसकी चार्ट शीट के स्टैंडर्ड्स को मैच अप कर रही है तो उसकी प्रमोशन होगी, जहां पे उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरी और स्टेटस सब कुछ क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा.
और लास्ट होता है हमारा क्या, कॉम्पेंसेशन, यानी कि जब हम रिवॉर्ड्स देते हैं दो फॉर्म में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होते हैं हमारी सैलरीज की फॉर्म में और इनडायरेक्ट होते हैं हमारे कार फैसिलिटी, रेंट फैसिलिटी, लोन, होम फैसिलिटी एटसेट्रा। So here is the question for all of you. Let's see. सबसे पहले नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग, यानी कि हमें स्टाफिंग का स्टेप ही माइंड में रखना है और उसके बाद की दो स्टेजेस बताना। तो रेजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिशिंग कंपनी. Its book on business studies for class 12 is in great demand. As a result, the employees in the marketing department are always racing against time. The employees have to work overtime and on holidays to cater to the demand. Managers in the marketing department are under stress as they have to handle more than 2 territories. The work stress has led to dissatisfaction among the employees and managers. तो यहाँ पे लोगों की ही रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। और इसके बाद के दो स्टेप्स कौन से हमारे, रिक्रूटमेंट और, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आ सकता। नेक्स्ट, state the next three steps that will have to undertaken for obtaining a satisfied workforce. यानी कि वो सीधा सीधा कह रहा है, वर्कफोर्स की बात हो रही है, यानी कि एस्टिमेटिंग हो रहा है, उसके बाद के हमें 3 बताना है। बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड हम फिर से क्वेश्चन को रीड करेंगे। Akanksha, Nikita and Parishma are the owners of a handicraft unit in the urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in the manufacturing and marketing of Seetal Patti, traditional mats and Jappi, the traditional headgear. They decided to shift their manufacturing unit to a rural area with an objective of reducing the cost and providing job opportunities to the locals. They followed the functional structure in this organization with a view to increasing managerial and operational efficiency. They assessed and analyzed the type and number of employees required, keeping in mind that what they had to encourage the women and the people with special needs belongings to the rural area. तो एस्टिमेटिंग हो रहा है, उसके बाद के 3 स्टेप्स क्या है हमारे, सबसे पहला रिक्रूटमेंट, फिर क्या आता है हमारा सिलेक्शन, और थर्ड क्या आता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। Correct? Next, identify and state the next 3 steps that Harish has to perform in the staffing process after selecting the heads of different department. मतलब उसने हेड्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद के हमारे 3 स्टेप्स क्या क्या उसको परफॉर्म करने हैं। तो Harish, the director of a company, is planning to manufacture stuffed toys for utilizing waste material from one of his garment factories. He decided that this manufacturing unit will be set up in a rural area so that people of that area will have more job opportunities. For this, he selected Rahman and Kita Banerjee, Harpreet Kaur and Umesh, a differently abled but very intelligent and creative persons in design, as the heads of sales, accounts, purchase and production departments respectively. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद के 3 स्टेप्स बताने, तो क्या होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और थर्ड स्टेप क्या आ जाता है हमारा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। Correct? Next. Identify and explain the function of management being discussed in the above line.
Identify and explain the particular step related to the function of management as identified in part 1 of the question, which is already being performed, जो perform हो चुका है. Also state next 3 steps. एक तो वो बताना है जो perform हो चुका है और उसके बाद के 3 steps और बताना. Owing to the increased workload, so after demonetization, the income tax employees of Karnataka and Goa region had urged the center to increase manpower of the IT department by filling up 35% vacancies, which were lying vacant. As they were confirmed reports about misuse of bank accounts, foreign exchange mechanism, gold purchases and adoption of various other dubious means for investing the unaccounted cash. तो द फंक्शन क्या हो गया हमारा? स्टाफिंग. प्रोसेस कौन सा हो गया हमारा? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. और इसके बाद के 3 स्टेप्स हमारे कौन से हो जाएंगे? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अब तो याद ही हो गए होंगे सबको, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. पहले मुश्किल लग रहा था, अब सबको इजी लग रहा होगा. करेक्ट. दिस इज द ओनली थिंग कि मैं इतनी सारी केस स्टडीज लेके. फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट एस्पेक्ट्स में जो क्या होता है? पॉजिटिव एस्पेक्ट. रिक्रूटमेंट को हम 2 सोर्सेज में क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में हमारे 2 आते हैं. प्रमोशन जो कि हमारा क्या होता है? वर्टिकल, जिसमें हमारी सैलरीज और वेजेस, स्टेटस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बढ़ता है. ट्रांसफर जो कि क्या होता है? हमारा हॉरिजॉन्टल, जहां पे हमारी सैलरीज कभी कभी बढ़ती हैं, बाकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस में कोई चेंज नहीं है. So here is the question for all of you. सबसे पहले identify the function of management. Identify the function of management being performed by the firm in the above situation and name the concept and its source. So Joseph Bros, a firm manufacturing jute lampshade, it uses leftover jute pieces from various jute factories to manufacture economical lampshades, which are supplied to various hotels in nearby towns. It employs men and women from nearby villages as workers for creating a good lampshade designs. Joseph Bros is not able to meet its targets. Namish, the superior of the company, was told to analyze the reasons for the poor performance. Namish found the following problems and suggested certain solutions in the working of the business. The number of workers employed was less than that are required for the firm. As a result, the existing workers were overburdened. The firm decided to search for new workers and has asked the present employees to introduce candidates or recommend their friends and relatives. सीधा सीधा हमें क्या लग रहा है? फंक्शन हो गया हमारा स्टाफिंग. और कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो क्या हो गया? रिक्रूटमेंट. और अपने फ्रेंड को कर रहा है तो क्या हो गया हमारा? एक्सटर्नल. मेरिट्स, मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है क्योंकि हर किसी को लगता है कि इसकी प्रमोशन हो रही है तो शायद मेरी भी प्रमोशन हो सकती. प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है उसके सिलेक्शन और प्लेसमेंट के. क्यों? क्योंकि सबको पता होता है कहाँ पे हमें क्या जॉब परफॉर्म करनी है. मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है. हमारे इधर से उधर शिफ्ट करने में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है और ये हमें बहुत चीपर फॉर्म ऑफ मोड भी पड़ता है. नेक्स्ट, name the external internal source of recruitment used by Senor Enterprises Limited to fill up the above stated vacancies. Ashish, the marketing head, Raman, the assistant manager, and Jyoti, the HR manager of Senor Enterprises Limited, decided to leave the company. The chief executive officer of the company called Jyoti, the HR manager, and requested her to fill up the vacancies before leaving the organization. Informing that her subordinate Ms. Alka Pandit was very competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, Chief Executive Officer agrees for the same. यानी कि क्या हो गया यहाँ पे? Promotion. Ms. Alka Pandit contacted key recruiters for advice for the post of marketing head for Senor Enterprises. यानी कि private agencies and management consultants.
Raman's vacancy was filled by screening the database of unsolicited applicants, यानी कि casual caller. करेक्ट. तो इंटरनल एक्सटर्नल का हो रहा है, दोनों ही मेथड्स हमारे यहाँ पे यूज किए जाते हैं. एक्सक्यूज मी. तो इंटरनल के डीमेरिट्स क्या होते हैं? फ्रेश टैलेंट नहीं आ सकता, उन्हीं लोगों से ही काम चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज जो होते हैं वो लेथार्जिक हो जाते हैं, उनका आलस चढ़ जाता है, काम करने का मन नहीं. नई कंपनी कभी की भी ये मेथड यूज नहीं कर सकती है. कंपटीशन लेवल बहुत रिड्यूस हो जाता है, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर जब हम करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो हमारी प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो सकता है. इसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल, जब हम बाहर के लोगों की हेल्प लेते हैं, जिसमें से पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब हम नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं. कैजुअल कॉलर्स, अनसॉलिसिटेड डेटाबेस, यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ नोटिस. एडवर्टीजमेंट कहीं भी ऐड दे देते हैं हम. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट रन करती है, जहां पे वो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को हायर करती है. प्राइवेट एजेंसीज जो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, जिसमें हम मिडल और टॉप लेवल की वैकेंसीज को फुलफिल करते हैं. कैंपस रिक्रूटमेंट जो हम कॉलेजेस से हायर करते हैं. रिकमेंडेशन, ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉय अपने फ्रेंड या रिलेटिव को मेंशन करता है. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जहां पे हम लेबर को हायर करते हैं. टेलीविजन सेम उसी में इंक्लूड कर सकते हो आप. वेब पब्लिशिंग जो हम इंटरनेट पे अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं. So here is a question. The above discussion is indicating an important function of management. The management function identified in part 1 follows a particular process. Explain the step of this process which is being discussed in the above paragraph. Zenith Limited is a high reputed company and many people wanted to join this company. The employees of this organization are very happy and they discuss how they came in contact with this organization. Aman said that he was introduced by the present sales manager, Mr. John. Present sales manager यानी कि recommendation of employees. Benu said that he has applied through the newspaper यानी कि advertisement. Weber said that he was neither related to any employee of the organization nor there was any advertisement. He was directly called from IIM Ahmedabad. He was about to complete his MBA यानी कि campus recruitment. Correct? Trija. So two sources of external बताने हैं हमें. Trija runs an NGO under the name Sarthak in Delhi. The organization is engaged in offering waste paper recycling services to all kinds of institutions in the Delhi NCR region. It also manufactures custom-made paper stationery out of recycled paper on order for the interested institutions at a very competitive price. Website of Sarthak provides a link to a career site wherein people desire of joining the NGOs can use simple job search to find the reason. यानी कि वेबसाइट यानी कि क्या हो गया? वेब पब्लिशिंग. The NGO also keep a database of unsolicited applicants यानी कि casual callers. I think हम कर लेते हैं because we are already done with the maximum questions now. क्वालिफाइड पर्सनल मेरिट है, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं, साथ में हमारे पास बहुत ही ज्यादा चॉइस भी होती है. फ्रेश टैलेंट हमारा आता है, फ्रेश ब्लड होता है. कंपटीशन स्पिरिट बहुत होती है क्योंकि हर कोई अपने आप को बेस्ट प्रूव करने की कोशिश करता है. डीमेरिट्स भी है इसके. सबसे पहले डिससेटिस्फैक्शन, एग्जिस्टिंग स्टाफ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता क्योंकि उसको भी लगता है कि हमारे प्रमोशन के चांसेस बहुत रिड्यूस है. बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एज वेल एज बहुत कॉस्टली भी प्रोसेस हमारा पड़ता है. सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल. आई थिंक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वी आर डन अप विद दिस.
सेकेंडली हमारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का है, ये भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। सो सिलेक्शन का हमारा प्रोसेस होता है, क्योंकि सिलेक्शन एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेट्स सी एक एम्प्लॉय कैसे सिलेक्ट होता है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहां पे उसको एक फॉर्म दिया जाता है, हमें उस फॉर्म को फिल करना होता है। सिलेक्शन टेस्ट, जहां पे एक एम्प्लॉय 5 टेस्ट देता है। इंटेलिजेंस, जहां पे हमारा आईक्यू लेवल चेक होता है। एप्टीट्यूड, की हम नई चीजें कैसे जल्दी जल्दी लर्न कर सकते हैं। पर्सनालिटी, हमारी इमोशंस, बिलीव, वैल्यूज। ट्रेड टेस्ट, हमारा डेमो लिया जाता है। इंटरेस्ट टेस्ट, हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को देखा जाता है। एम्प्लॉय इंटरव्यू, जहां पे हमारा फेस टू फेस पूरी की पूरी मैनेजमेंट पैनल के साथ इंटरव्यू होता है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, हमारा देखा जाता है वेदर वी आर क्लीन चिट पर्सन और नॉट। फाइनली एक एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाता है। उसी एम्प्लॉय का मेडिकल होता है, देखने के लिए कि इफ ही कैन ही इज एबल टू कोप अप द चैलेंजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। उसको जॉब दे दी जाती है और उसका फाइनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। So here is the question. Let's see, मैंने आपको कहा था कैसा क्वेश्चन आएगा. Let me tell you. Identify and state the next 3 steps for choosing the best candidate out of the shortlisted candidate. Nishant, the director of a garment company, is planning to manufacture bags for the utilization of waste material from one of his garment unit. He has decided that this manufacturing unit was set up in a rural area of Odisha, where people have very few job opportunities and labor is available at a very low rate. He also thought of giving equal opportunities to men and women. For this, he wanted 4 different heads for sales, accounts, purchase, and production. He gave an advertisement and shortlisted 10 candidates. After performing different selection tests, टेस्ट हो गए हैं, उसके बाद के 3 स्टेप्स बताने हैं आपको. टेस्ट के बाद क्या आता है हमारा? एम्प्लॉय इंटरव्यू, फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स और फाइनली सिलेक्शन रिसीव. नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो दी जाती है ताकि हम नॉलेज और स्किल्स को एनहांस कर सकें. ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है? एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को समझ लेता है. प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसको हर मशीन को अच्छे से यूज करना आ जाता है. हर चीज के नए मेथड्स वो सीख लेते हैं. ऑल्सो वो चैलेंजेस लेना जान जाता है, तो वो नया फ्यूचर मैनेजर भी अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन. हमारे मोराल को बूस्टअप करने की कोशिश करता है. डायनेमिक एनवायरनमेंट में हम इजीली कोप अप कर लेते. नेक्स्ट, suggest what can be done to develop the skills and abilities of employee for producing good quality products. सीधा सीधा क्या कह रहा है? ट्रेनिंग. Also state how the employees of the organization will be benefited by your suggestion. Blue Heavens Limited purchased a new machinery from Germany for manufacturing some auto components. It was a cost-effective and quality production machine, but during the production process, manager observed that the quality of the production was not as per the standards. On investigation, it was found that there was lack of knowledge of using high-tech machines. So frequent visits by the engineers were required from Germany, but this resulted in high overhead charges. So training और इससे हमें क्या benefit मिलेगा एम्प्लॉइज के पार्ट पे? तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे वी विल बी स्टडिंग, तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ. बेटर कैरियर, इंक्रीज अर्निंग्स. हियर यू गो. कैरियर हमारा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें नई नई नॉलेज मिलती है, हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं. हमारी अर्निंग्स बढ़ सकती है, माइट भी अगर हम कहीं और ट्राई करना चाहें तो. सेफ्टी, हमारे एक्सीडेंट्स रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो एज हमारा मोरल भी बूस्ट अप हो जाता है. So here is the difference between the training and development.
आई गेस आपको क्लियर होएगा। एक पॉइंट फिर से 1 मार्क का क्वेश्चन बता दूं, ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस whereas development is a career oriented process. You can easily go through this. If you still have any doubt, please feel free. I'm here with you only. हमारे 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में इंडक्शन, जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन को फेमिलराइज कराते हैं। अप्रेंटिसशिप जब हम वर्कर्स के गाइडेंस में होते हैं, जहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स का। इंटर्नशिप जहां पे हम प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए करते हैं। जॉब रोटेशन, जब हमारी जॉब को रोटेट कर दिया जाता है ताकि हम सारे वर्क स्टेशन पे परफेक्टली परफॉर्म कर सके। और ऑफ द जॉब में हमारी सिर्फ एक आती है, दैट इज वेस्टिबुल ट्रेनिंग, जहां पे हमें डमीज, मॉडल्स और चार्ट्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। So here is the difference between on the job and off the job. Let's have a look over the case study. Name and explain the type of training which Anushka has able to undertake, or explain briefly one method for providing off the job. So off the job तो हमें पता ही है क्या है, it's only and only vestibule. So Anushka is doing a course in fashion designing from an institute of repute. As a part of the course, she has been asked to take online job training in an export house for a fortnight in order to gain an insight about various practical aspects related to design. Anushka thought the references from his senior joins an export house owned by an upcoming designer, Nandita. तो practical aspect कौन सी हो जाएगी हमारी? Internship. The employees of Food Darbar, a restaurant, are trained through a structured program that provides training in each area within the restaurant. The trainees learn the skills necessary for running each of the 12 workstations in the restaurant. यानी कि हर के ऊपर ट्रेन कराया जाता है, from taking the orders to the cooking area. This enables the employees to gain a broader understanding of all parts of the business and know the restaurant functions as a whole. The trainee gets fully involved in the departmentals or operations and also gets the chance to test her own aptitude and ability. When employees are trained by this method, the organization finds it easier at the time of promotion, replacements or transfer. So type of training कौन सी हो गई हमारी? Job rotation. और बीच बाद में आपको उसका डिफरेंस बताना है बिटवीन ट्रेनिंग एंड। So let's test your skills. Before this, I would like to tell, with this we have come to an end of the class for today's session. It was a very beautiful session on part of a very good occasion of Christmas. So अब you are free from my side, and tomorrow being Sunday is a holiday. So we will be meeting on Monday at your own favorite time in the evening at sharp 6 p.m. जहां पे a very big surprise is coming on the way. So let's tune with me on Monday at sharp 6 p.m. So let's test your skills once again. So first question. While selecting manpower, dash is kept in mind. Experience. Recruitment process starts with demand of employees. Dash is the process of examining the applicants, which ensures that only the appropriate persons have been appointed. Selection. In the selection process, applicants having required qualifications are included. In the use of dash recruitment, the entry of young employees is restricted. Internal. In the dash source of recruitment, the employees do not need inductions, yani internal. The external recruitment source provides the advantage of wider choice. The use of dash source of recruitment results in the feeling of discontent of the existing staff, यानी कि external. The main basis of dash is learning before doing of the job. The objective of dash is to get the practical and the theoretical knowledge internship. So with this, we have come to an end of the class. If still anyone is having any doubt regarding the chapter, please feel free to drop a message. I'll surely revert to your doubts.
अन अकेडमी की ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहां 2 तरीके की सब्सक्रिप्शन आएंगी. द फर्स्ट वन इज द प्लस एंड द अदर वन इज द आइकॉनिक. मैं आपको प्लस के फीचर्स बताती हूँ. आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं. आपके सारे सब्जेक्ट्स एक छत के नीचे कवर अप होंगे. आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ रहे हैं. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस कंडक्ट करे जाएंगे. कोई भी पॉइंट टॉपिक चैप्टर आपका छूटेगा नहीं. Proper motivation and guidance will be given to all of you. Study materials in PDF formats. प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जिस भी फॉर्म में आप देना चाहें. लाइव टेस्ट सीरीज ताकि आपको बोर्ड के पैटर्न से फेमिलियर कराया जाए. अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू हैव टू पे 1250 रुपीज फॉर अ मंथ. अगर आप 24 मंथ्स की लेते हैं यू हैव टू पे ओनली 1042 रुपीज फॉर अ मंथ. With this, you can use my referral code, that is BREJ10 to get a flat discount of 10%. Next is Iconic. जो हमारे बच्चे ग्रुप में नहीं पढ़ सकते वो इजिली 1-on-1 मेंटर के साथ पढ़ सकते हैं. साथ ही वो अपने मेंटर के साथ सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं. Proper weekly reports will be made ताकि उन्हें पता चल सके where they stand at the end of the week. Along with being in touch with them, उनके mentors, उनके पेरेंट्स के साथ भी कंटेक्ट में रहेंगे ताकि उनके पेरेंट्स को भी उनकी रिपोर्ट्स के बारे में बता सकें. स्टडी प्लानर्स विल बी मेड ताकि आपको एक वे मिल सके हाउ वेल यू कैन प्लान योर स्टडीज. इसी के साथ आपके प्लस के सारे फीचर्स भी यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे. अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू हैव टू पे ओनली 2333 रुपीज फॉर अ मंथ. अगर आप 24 मंथ्स की लेते हैं यू हैव टू पे ओनली 2000 रुपीज फॉर अ मंथ. इसी के साथ अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि BREJA10 यूज करोगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए. अ वेरी एक्साइटिंग ऑफर इज गोइंग थ्रू जहां पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं इधर प्लस और आइकॉनिक और नॉर्मली अगर आप मेरा रेफरल कोड करते हैं दैट इज BREJA10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है. इनिशियली जो एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है अगर आप प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हैं इधर फॉर 1 ईयर और फॉर 2 ईयर तो आपको 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस ऑफर इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर द CBSE क्लासेस फॉर 6 to 12 स्टैंडर्ड. एडिशन टू दिस अगर आप पहले 1000 सब्सक्राइबर्स में काउंट किए जाते हैं देन यू कैन ऑल्सो गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट एज वेल. Bugs Bounty, a very special feature organized by an academy in which if you see any inappropriate content or data, please go to the description below. Form is provided. If you'll be correct and you'll be the first one, you can easily claim your prize. So, हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं from the Monday यानी कि day after tomorrow, in which you can sparkle your term 2 with the commerce as well as the science team. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं और आप इजीली टर्म 2 को क्रैक कर सकते हैं. मंडे से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. द ड्यूरेशन आर 3 मंथ्स और जो कॉमर्स का बैच है द मीडियम ऑफ कंटेंट विल बी इंग्लिश सो एज अगर हम साइंस के बैच की बात करें तो मीडियम ऑफ कंटेंट विल बी हिंदी. प्लीज गो अहेड एंड ज्वाइन द बैचेस एंड गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर्ड फॉर योर टर्म 2 एज वेल. Thank you so much everyone. Don't forget to like, share, subscribe the video. We'll be meeting on Monday at sharp 6 p.m. in the evening. Till then, please take care of yourself. Thank you. Bye everyone. Enjoy your day. Have a Merry Christmas once again. Bye everyone.